Namaste Gurukulians, how are you beta? I think you are fit and fine. Beta, in the last video we discussed about the numericals. We discussed about the equations of motions. Okay, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half it square, and v square minus u square is equal to s for constant acceleration. Today beta we will discuss about the graphs. बेटा व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफ? एक बात बताएं बेटा, आप ग्राफ किससे क्या समझते हैं? एनी ग्राफ यू हैव मेड योर इन योर 10th क्लास बिटवीन एक्स एंड वाई. ग्राफ इज ऑलवेज बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. टू वेरिएबल्स मीन्स हाउ अ वेरिएबल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अनदर. एक वेरिएबल जब चेंज होता है तो उसके साथ दूसरा उसके हिसाब से कैसे चेंज होता है, ठीक है ना? तो इसका क्या मतलब है? द ग्राफ इज द पिक्टोरियल, एक पिक्चर होती है ना, एक पिक्टोरियल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. क्लियर? फाइनल. नाउ बेटा लिसन, हियर इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट ग्राफ्स. आप कहेंगे सर इसमें हम कौन कौन से वेरिएबल पढ़ेंगे? व्हेन अ बॉडी मूव्स, टाइम पासिस एंड रिस्पेक्ट टू टाइम इट्स पोजिशन चेंज. इसकी पोजिशन भी लगातार क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है. टाइम इज ऑल्सो वेरिएबल. इफ ही इज मूविंग, पोजिशन इज ऑल्सो वेरिएबल. Means we will make the graph between position and time. Okay, one more thing. Suppose I am going on a road on bike. I am increasing my speed. I am changing my speed. Now speed is variable. Time is also variable. Graph will be there between them. Speed time graph. In this way, velocity is changing. Time is also changing. Velocity time graph means when we draw the graph between two variables. Okay, then this graph will represent the pictorial relationship between those two variables. Clear? Final. Now listen, position time graph. You can write here a one line in definition. It represents pictorial relationship between position of object with respect to time. Means when time changes, how position changes of object. Okay, suppose I am standing here, time is changing. Is my position changing? No. Okay, means टाइम के साथ साथ पोजीशन. अच्छा, सपोज मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ तो क्या होगा बेटा? टाइम के साथ साथ मेरी पोजीशन धीरे धीरे चेंज हो रही है. ग्राफ बनाएंगे. मैं खड़ा हूँ, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसका भी ग्राफ बनेगा. अगर मैं तेज़ी से भाग रहा हूँ और मेरी पोजीशन क्या हो रही है? तेज़ी से चेंज हो रही है, तो उसका भी ग्राफ बनेगा. तो यहाँ पे पोजीशन भी वेरिएबल है, टाइम भी क्या है? वेरिएबल है. देन वी विल ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन टू वेरिएबल्स, पोजीशन एंड टाइम. ओके, सपोज आई एम चेंजिंग माई वेलोसिटी, देन देर आर टू वेरिएबल्स, वेलोसिटी एंड टाइम. we can make also the graph between velocity and time. तो means graph is the pictorial relationship between two variables. ओके, एक के साथ दूसरा कैसे चेंज हो रहा है, तो इसकी जो पिक्टोरियल रिलेशनशिप है ना, उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा? शॉर्टकट में ग्राफ बोल देते हैं. ओके, नाउ इन अवर सिलेबस, in this chapter we will study two types of graph: position time graph and velocity time graph. Position time graph, it represents pictorial relationship between position of object with respect to time. Okay, clear? Beta, three things may be there. One is there, object may be at rest. Second is, object may be in uniform motion. And third is, object may be in non-uniform motion. तीन बातें हो सकती हैं. या तो ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग पे है, खड़ा है, या ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है, या ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म है. क्लियर? फाइनल. तो राइट, फर्स्ट पार्ट, फॉर ऑब्जेक्ट एट rest. For object at rest. Now listen. Suppose beta, this is the road, straight road, and this is origin, reference point we can say. If anybody is standing here at point A and the position of point A, you know beta, position is measured from origin. Position of this point is suppose 10 meter. The separation of this point from origin is 10 meter. So name of this point will be plus 10. And if a person is standing here at separation 5 meter, then its name will be minus 5.
because position is taken as vector quantity. In this side it is positive, on that side it is negative. Okay, fine. This separation is 5 meter, then it will be -5, it will be +10. If a person is standing at point A, he is standing 9 बजे से लेके 1 बजे तक बेटा वो यहीं पे खड़ा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ पोजीशन, x is position, t is time. We have to make the position time graph. Now listen, suppose 20 सेकेंड से लेके या 0 सेकेंड से लेके ओके 5 सेकेंड तक, मैंने जब टाइम नोट किया 0 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड तक, a person is standing at point A, then how will be the graph? Now tell me how much is he is having the position? +10 meter. When time is 0 second, his position was 10 meter. Time was when 1 second, his position was again 10 meter. When time was 2 second, position was again 10 meter. In this way 1 2 3 4 5, the graph will be in this way, a straight line parallel to time axis. ओके, बिकॉज टाइम चेंज हो रहा है बेटा, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अगर एक के चेंज होने से दूसरा चेंज ना हो तो बेटा इसे बोलते हैं पोजीशन इज इंडिपेंडेंट टू टाइम। टाइम जितना मर्जी हो जाए, पोजीशन तो सेम की सेम है। इट इज़ द ग्राफ। बेटा मैं इसको देख के ये जान पा रहा हूँ। अगर कोई मुझे ये दिखा दे ना, सर ये ग्राफ देखना इस ग्राफ को, तो आप बताएं ऑब्जेक्ट की क्या स्थिति है। मैं ग्राफ को देख के बता दूंगा कि ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है, और मैं ये भी बता दूंगा कि ऑब्जेक्ट खड़ा कहाँ पे है। ऑब्जेक्ट 10 यहाँ पे खड़ा है, मुझे पता चल गया ना ग्राफ को देख के। क्लियर, फाइनल। तो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। नाउ टेल मी, इफ ऑब्जेक्ट स्टैंड्स हियर देन इट्स पोजीशन विल बी 0, देन हाउ विल बी द ग्राफ? दिस विल बी द ग्राफ, बिकॉज ये 10 मीटर वाली पोजीशन उठ के यहां आ जाएगी ऐसे। Now tell me, if the person stands here, then how will be the graph? -5 मीटर यहां आ जाएंगे। क्लियर, फाइनल। सो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कि एक वेरिएबल से दूसरा कैसे चेंज हो रहा है, या चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, एक के साथ दूसरा कैसे डिपेंड कर रहा है। Clear, final. This is the, so in this graph we will say that one thing only, that position is independent to time. How much time be, position does not change, position is always constant. Here position is 10 meter, here position is 0 meter, and here position is -5 meter. Clear, okay. So this was position time graph for object at rest. Now we will study that position time graph for uniform motion. Listen, now for object in uniform motion. But now listen, suppose on an object, suppose this is origin, and an object starts his motion from point x1 to point x2. Suppose he was at this point at time, suppose t1 second, and he was at this point at time, suppose t2 second. Okay, and during this motion he was having uniform motion, uniform speed, uniform velocity. He was having uniform velocity. बेटा यूनिफॉर्म मोशन का पता क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. He was having uniform velocity. Clear? Then बेटा how will be the graph? Between time t1 to, because this is time axis, then we will take it as time t1, it as time t2. Okay, now at time t1 his position was x1, means at time t1 his position was x1. In 10th class you make the points when x is 2, y is 3, then what will be the point representing this point? When time was t1 position was x1. Okay, when time was t2
join them. This straight line is the graph for uniform motion. Now you will ask the question, sir, why the graph is straight line? कि ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन क्यों हुआ, कोई और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्यों नहीं हुआ, ग्राफ आपने स्ट्रेट लाइन क्यों बना दिया? बेटा, आई एम टेलिंग यू वन वेरी स्पेशल थिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन. लिसन, व्हाट इज द स्पेशल थिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन? बेटा, on that day I told you the definition of uniform motion. What was uniform motion? If object covers equal distance in displacement in equal interval of time. पढ़ा था आपने? Listen, बेटा स्ट्रेट लाइन की खास बात होती है, आप यहां पे कोई भी टाइम इंटरवल ले लें. सपोज एट इन दिस टाइम दिस इज t1, दिस इज x1, दिस इज t2, दिस इज x2. ओके, दिस इज T4, this is X4. Suppose this is T5, this is X5. Suppose आपने ऐसे ले लिया. These two time intervals are same. मान लेते हैं ये दोनों टाइम इंटरवल बेटा क्या है, सेम है. बेटा टेल मी how much displacement will be covered in this time interval. In this time position was x1, in this time position was x2. Change in position is, अगर मैं बात करूं इसका नाम क्या है, इसका नाम x2 माइनस x1. दिस इज x2 माइनस x1, चेंज इन पोजिशन, एंड चेंज इन पोजिशन इज ऑलवेज द डिस्प्लेसमेंट. तो इतने टाइम में इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई. और एक बात आपको बताऊं, इतना ही टाइम और ले लीजिए कहीं भी, सेम डिस्प्लेसमेंट कवर होगी, जितनी ये है ना उतनी ही कवर होगी. ये स्ट्रेट लाइन की खास बात होती है बेटा, कि कोई इंटरवल आपने यहाँ लिया, उस इंटरवल पे यहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट शो कर दी. आप कहीं भी उतना ही इंटरवल कहीं भी ले लीजिए बेटा, उतनी ही डिस्प्लेसमेंट शो होगी जितनी कि यहाँ पे है. मीन्स इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हुई, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा. एंड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट मेक द स्ट्रेट लाइन. दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन पोजिशन टाइम ग्राफ. क्लियर? अ स्ट्रेट लाइन. ओके, सो फॉर रेस्ट, फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ग्राफ वाज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. But for uniform motion graph is not parallel to time axis. ग्राफ जो है बेटा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इट इज स्ट्रेट लाइन. क्लियर? चलिए एक बात देखें बेटा, अगर इसी क्वेश्चन में इफ आई स्टार्ट दिस टाइम एट 0, देन हाउ विल बी द ग्राफ? देन टाइम 0 position x1, where will be the point when time 0 position x1? This will be point. When time t, क्योंकि अब 1 तो है नहीं कोई, तो टाइम t position x2, टाइम t position suppose x2. Make the straight line. The straight line will show the graph between position and time for uniform motion. Clear? ना बेटा ये थोड़ा लंबा चलेगा ये टॉपिक, इसमें आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ. ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू पोजिशन टाइम ग्राफ अंडर यूनिफॉर्म मोशन, मैथमेटिकल रिलेशन विच आई हैव रिटन इन द नोट्स PDF. आई विल सेंड यू. नाउ लिसन, नाउ स्टिल दिस टॉपिक इज नॉट completed. One very important thing I want to describe in this graph, straight line graph. Listen, velocity of object in position time graph. Velocity of object in position time graph. Only you have to understand, I have written this in your PDF which I will send you today. This is position time graph. Okay, and suppose at time 0 t1 position is x1, at time t2 position is x2. This is straight line. Okay, final. Now listen, suppose this angle is theta, suppose this line, this graph makes angle theta with this. अगर ये लाइन इसके साथ थीटा बना रही है तो ये बात कंफर्म हुई, ये लाइन इसके साथ भी कितना एंगल बनाएगी, थीटा बनाएगी, बिकॉज दीज बोथ आर पैरेलल. यू हैव स्टडीड इन कोरस्पॉन्डिंग एंगल इन 10th क्लास. ओके, नाउ लिसन,
suppose this angle is theta and this point is A, this point is B, this point is C. Now listen, see the triangle. In this triangle, which triangle? CAB. Tangent theta, you know, it is equal to perpendicular by base. Perpendicular is CB or BC and this is AB. Okay, now what is the value of CB? CB, this is equal to this, and you know this is x2 minus x1, and similarly AB is T2 minus T1. Beta, you are familiar with this point. x2 minus x1 is displacement covered and T2 minus T1 is time taken. ओके देखो ना, जब 5 सेकंड हुए थे तब मैंने चलना शुरू किया, जब 12 सेकंड हो गए तब मैंने अपना मोशन बंद कर दिया, तो बताना मैं कितने टाइम के लिए चला? 12 माइनस 5। जब 5 सेकंड हुए तो मैंने चलना शुरू किया, जब 12 सेकंड हुए तो मैंने चलना ख़त्म किया। फॉर हाउ मच टाइम आई वॉक? दिस माइनस दिस 7 सेकेंड्स, T2 माइनस T1। व्हाट इज दिस? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यू एवरीवन नो, वेलोसिटी। Because velocity is equal to x2 minus x1 by T2 minus T1. तो velocity is equal to the tangent theta. ओके, अब आप कहेंगे सर कौन सी वेलोसिटी है ये? एवरेज वेलोसिटी है या इंस्टेंटेनियस है? बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में सभी वेलोसिटी एक ही होती हैं। एवरेज का जो आंसर आएगा वही इंस्टेंटेनियस का आएगा। ओके, सो आंसर विल बी दिस, tangent theta. बेटा, अब यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत बात आ रही है, मीन्स जितना ज़्यादा थीटा हो जाएगा टेंजेंट थीटा की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। कैसे? टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है? टेंजेंट 30 की 1/√3, टेंजेंट 45 1, एंगल बढ़ गया तो नंबर भी तो बढ़ गया ना। टेंजेंट 30 है दिस वैल्यू, टेंजेंट 45 है दिस वैल्यू, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस। ओके, फाइनल। टेंजेंट 60 है दिस वैल्यू। एज एंगल इज इंक्रीजिंग, वैल्यू इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, मीन्स एज एंगल विल इंक्रीज, tangent theta will also increase and velocity will also increase. Okay, if anyone asks you A, B, two objects are moving, whose velocity is greater? Then you will say that whose theta is greater. और थीटा एंगल किस में है बेटा? ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ। किसका एंगल टाइम एक्सिस के साथ ज़्यादा है? B का एंगल ज़्यादा है टाइम एक्सिस के साथ। ज़्यादा क्यों? B खड़ा है ना ज़्यादा, तो B का एंगल टाइम के साथ ज़्यादा है, तो वी कैन से दैट B हैज ग्रेटर वेलोसिटी देन A इज हैविंग। क्लियर? B हैज ग्रेटर वेलोसिटी। क्लियर? फाइनल, B हैज ग्रेटर वेलोसिटी देन A इज हैविंग। नाउ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ रेस्ट, जब अभी हमने रेस्ट की बात की थी तो ग्राफ आपका कैसा आया था बेटा? इन केस ऑफ रेस्ट ग्राफ विल बी in this way, parallel to time axis. Now tell me, the angle between this line and time axis 0 degree, parallel, tangent 0, velocity is 0। रेस्ट पे था ना ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो रेस्ट वाली बात भी इस बात से हो गई ना बात क्लियर? तो इससे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, रेस्ट की भी मिल जाएगी और मोशन की भी मिल जाएगी। क्लियर? We will study many numericals, we will discuss, we will describe many problems of this topic. This formula is very important, so many questions are there regarding this formula. Okay, this is position time graph under uniform motion. ओके, तो बेटा ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ की खास बात यह है कि लाइन कहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है अपने T1 कहाँ से, कितने टाइम को आपने शुरुआती टाइम माना, कितने टाइम को आपने इनिशियल पोजीशन माना। ठीक है ना? क्लियर? नाउ लिसन, इफ दिस इज ओरिजिन एंड यू स्टार्ट फ्रॉम x1 to x2 here, if you start from this point at time t is equal to T1, beta tell me, if you were at this point at t is equal to T1 and you are moving with uniform velocity at t is equal to T1, you were here at 0 position, then how will be the graph? Listen, T1 T2, at t is equal to T1 you were here
and t is equal to t2, you were here. Means at t is equal to t1, your position was 0, means this point will be there. t is equal to t1, position was 0, and t is equal to t2, position was, this will be the graph. पोजीशन टाइम ग्राफ जरूरी नहीं है ओरिजिन से पास करेगा, वो कहीं से भी खड़ा हो सकता है। तो ओरिजिन से कब पास करेगा बताइए, ओरिजिन से कब पास करेगा? जब मैं आपको ये कहूँगा टाइम भी 0 यहीं से स्टार्ट हुआ और ऑब्जेक्ट को भी मैंने यहीं से देखना शुरू किया। व्हेन टाइम t इक्वल टू 0 एंड ऑब्जेक्ट वाज एट दिस पॉइंट एंड ही इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, देन ग्राफ विल बी एट t इक्वल टू 0, x इज ऑल्सो 0। क्लियर? तो मीन्स पोजिशन टाइम ग्राफ कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, from this point, 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 any point. Listen how. One more example I will describe you beta. Suppose this is x is equal to 0. Okay, beta listen carefully, it is very important. Suppose this is x is equal to 0. This is x is equal to 10, this is x is equal to minus 5. An object is coming. Okay, when he will reach here, okay, at t is equal to 0. Okay, and he will reach here at t is equal to 20 seconds. Then how will be the graph? At t is equal to 0, his position was x is equal to minus 5, t0, x minus 5. T is equal to 20, x plus 10 means it will be upward, plus 10 here, plus 10. ग्राफ विल बी एनीवेयर बेटा, ग्राफ कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है आप उसको लेके क्या चल रहे हो। ओके फाइनल। सपोज कोई गाड़ी आ रही है पीछे से, मैंने कहा जब वो यहाँ पे पहुँचेगी ना तो मैं टाइमिंग को 0 से स्टार्ट करूँगा, तो टाइम को 0 लिया, पोजीशन कितनी है -5, लेकिन ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, शुरू से ही यूनिफॉर्म है, इन दिस वे। वो तो आपका मोशन कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, वो तो उस पर डिपेंड करता है। सो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ लिसन, कैन वेलोसिटी बी नेगेटिव? You will say yes, because velocity is the vector quantity. Now listen, what will happen? Listen, this is position time graph. Now tell me, what will you say about this? What will you say about this? The angle between time and the graph is greater than 90 degree, and you know when theta is greater than 90 degree, then tangent theta is negative. When theta is greater than 90 degree, then tangent theta is negative, and when tangent theta is negative, it means velocity is negative. तो velocity बेटा क्या हो जाएगी, negative. Means this graph shows negative velocity, and this type of graph show positive velocity. Clear? This type of graph shows negative velocity, and that type of graph shows beta positive velocity, because here angle between the graph and time axis is less than 90 degree, and here it is greater than 90 degree. Clear? अच्छा बच्चे, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अब ये तो आपको पता चल गया। अच्छा ये बताना, दिस इज पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी? दिस इज पॉजिटिव। आपने केवल एंगल देखना है, एंगल। इट इज, you will say it is more than, it is less than 90 degree. Clear? You have to see only the angle with the graph with time axis. आपको सर आपने ये एंगल क्यों नहीं लिया? बिकॉज एंगल हमेशा यही से हम लेना शुरू करते हैं, क्वाड्रेंट ऐसे चलता है ना, इन दिस, ऊपर से लेंगे एंगल ऐसे। क्लियर? So how we will come to know velocity is positive or negative? When angle between the graph and time axis is less than 90 degree, then velocity is positive, and if the angle between graph and time axis is greater than 90, then velocity is negative. Clear?
नाउ टेल मी, दिस इज पॉजिटिव वेलोसिटी और नेगेटिव वेलोसिटी? लिसन, angle we will take in this way or in this way? In this way. An angle is greater than 90 degree. This velocity is negative. Clear? In this way we can say that how velocity is taken as positive or negative. We have only to see the angle between the graph and time axis. If tangent theta is negative, then velocity is negative, and if tangent theta is positive, then velocity is positive. Clear? In this way. Fine. Now beta, we will study now about the non-uniform motion. This was uniform motion. Now we will study about the non-uniform motion. Beta, we have studied about two types of graph. One graph is parallel to time axis. Another graph is making some angle with time axis. लेकिन दोनों केस में आपने क्या पढ़ा? Straight line. When it was parallel to time axis, it was straight line. It was representing at rest. And when it was straight line making angle to time axis, then it was in uniform motion. अगर ऐसे था तो पॉजिटिव वेलोसिटी, अगर ऐसे होती है तो नेगेटिव वेलोसिटी. वी होता है ना, वी ऐसे, वी वी. अगर इस तरह का ग्राफ हुआ देन इट रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव वेलोसिटी, और इस तरह का हुआ तो नेगेटिव वेलोसिटी. ओके, नाउ टेल मी, पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी. बस इसको ये बात याद रखिए, इस तरह का पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी. दिस इज पॉजिटिव वेलोसिटी एंड दिस इज नेगेटिव वेलोसिटी. क्लियर? फाइन. इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटीज. सो मैनी न्यूमेरिकल्स वी विल डू अबाउट दिस. नाउ बेटा, लास्ट इज पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. फॉर non-uniform motion. Beta, you everyone know what is non-uniform motion? When object covers unequal displacement in equal interval of time. Okay, this is called non-uniform motion. Okay, this is position time graph. Okay, suppose at time t1 object was at position x1, at time t2 object was at position x2. Okay, initial point we will take this and final point we will take this. If anyone asks you how will be the graph in non-uniform motion, अब बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ बनता है ना, वो स्ट्रेट लाइन बनता ही नहीं है. अगर स्ट्रेट लाइन होता तो मैं सीधा बना देता. अब वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा, वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. वो ग्राफ तो किसी भी तरीके से हो सकता है. इसलिए मैं कोई पर्टिकुलर एक ग्राफ नहीं बना सकता, लेकिन चलो मैं बनाने को ये बना देता हूँ ऐसे. दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर? फाइनल. नो, अभी आप एक कहेंगे सर जो आपने अभी एक बात बताई थी v इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा वाली, क्या वो इस पे भी लगती है? बेटा अब वो इस पे कैसे लगेगी? अब मेरी बात गौर से सुने. आप एक बात नोट कर रहे हैं, ग्राफ का जो एंगल है ना, एंगल वो टाइम के साथ लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. देखो कैसे, पहले जो ग्राफ एंगल की, जब इस पॉइंट की बात करो, व्हेन वी ड्रॉ द टेंजेंट, टेंजेंट ऐसा बनेगा इस पॉइंट पे. यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है? कम है. अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो देखो एंगल क्या हो गया? ज़्यादा हो गया. मीन्स एंगल इज इंक्रीजिंग. इफ एंगल विल इंक्रीज, velocity will increase. Means from t1 to t2 velocity of object is increasing or decreasing? Increasing. Why? Because angle between graph and time axis is continuously increasing. So we say that velocity of object is increasing. और मेरे बच्चे velocity increase कर रही है, तभी तो नॉन यूनिफॉर्म है. ओके, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता ना, स्ट्रेट लाइन, तो किसी भी, अब सपोज दिस इज स्ट्रेट लाइन, देन व्हाट विल हैपन? एंगल चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, एंगल तो स्ट्रेट लाइन का इसके साथ क्या रहेगा? सेम ही रहेगा. तो वेलोसिटी भी सेम रहेगी. बट यहाँ पर एंगल क्या हो रहा है? लगातार बेटा चेंज हो रहा है.
If angle is continuously changing, then beta tangent theta will continuously change and hence velocity will continuously change. चेंज भी क्या, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी बेटा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. क्लियर? नाउ टेल मी इफ ग्राफ इज दिस, then listen, firstly angle is greater, now it is continuously decreasing. Final? Clear? Okay, now listen one thing very important. Suppose anyone tell you at time t3 its tangent will be this. Listen, at time t3 its tangent will be this and its tangent is making angle with the time axis is 30 degrees. Suppose, I am supposing, if at t3 tangent at this point is this and time axis के साथ एंगल 30 डिग्री है, और सीधी सी बात, अगर इसका टाइम के साथ एंगल 30 होगा तो इसके साथ भी कितना होगा, 30 होगा. तो मैं आपको बताऊं बच्चे, इस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, टेंजेंट 30. वन बाय रूट 3. अब आप कहेंगे सर मीटर पर सेकंड आएगा या किलोमीटर पर आ आएगा. अगर ये मीटर में है और ये सेकंड में है, देन आंसर विल बी इन means v is equal to tangent theta is also applicable here, बट ये अलग अलग पॉइंट पे होगा. इस पॉइंट पे एंगल कुछ और होगा टेंजेंट का, इस पॉइंट पे एंगल टाइम के साथ कुछ हो रहा. सो एंगल इज डिफरेंट एंड हेंस वी कैन से दैट वेलोसिटी एट एवरी टाइम इज डिफरेंट. सो वी विल से दैट, टेल मी, वी विल से दैट वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, it is continuously changing and hence it is called non-uniform motion. Clear? This is for non-uniform motion. Many questions we will do. I will give you 1.5 hour lecture. Next lecture will be there and so many numericals. At least 25 numericals we will do it. 20 to 25 numericals we will do. Clear? Now listen. So beta, this was the position time graph. Now we will discuss beta about velocity time graph. Two graphs we have to do. One is position time graph and now we will study about velocity time graph. Now tell me what will be definition. You will say that this is the pictorial relationship between velocity and time of object. Velocity of object and time passed. कि दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे चेंज हो रहे हैं. द रिलेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ. क्लियर? अगेन, for object at rest, for object at rest, how will be the graph? बेटा, when time will pass but object वहीं का वहीं खड़ा है, क्या उसकी वेलोसिटी जब टाइम पास हो रहा है उसकी वेलोसिटी हर टाइम पे कितनी है, 0 है. ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन हाउ मच विल बी द टाइम, इट्स वेलोसिटी विल बी 0. It means graph will be this. ग्राफ आपका ये हो जाएगा. क्लियर? नाउ बेटा, सेकंड पॉइंट इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन. फॉर यूनिफॉर्म मोशन बेटा, अरे नाम से लग रहा है यूनिफॉर्म मोशन मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक जैसी वेलोसिटी. तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक जैसी वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा. एक जैसी वेलोसिटी मीन्स टाइम इज पासिंग बट वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग. मीन्स सपोज वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज 1 सेकेंड, वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड. टाइम इज 2 सेकेंड, वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड. टाइम इज 3 सेकेंड, बेटा ये ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ में किसका था, रेस्ट का था.
पता क्यों? उसमें पोजीशन कांस्टेंट थी, इसमें यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसमें ऐसा होगा। ओके, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ओके फाइनल। और अगर नेगेटिव वेलोसिटी है तो ग्राफ कैसा आएगा? जीरो वेलोसिटी है यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो कैसा आएगा? अब आपसे क्वेश्चन पूछो बच्चे, अच्छे से बताओगे ना? लिसन, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इज देयर, सपोज ए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज दिस। तो इसके जैसा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के दिखाएं, कैसा बनेगा? हाउ विल यू मेक द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कोरस्पॉन्डिंग टू दिस? कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ ये बनाया तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? लिसन, टाइम इज, सपोज दिस टाइम इज -2 seconds एंड दिस टाइम इज +2 seconds। आप कहेंगे सर टाइम नेगेटिव में कैसे लिख लिया? बेटा नेगेटिव में टाइम लिखने का ये मतलब हुआ कि हमने जो मीन टाइम माना है ना, मीन टाइम, उससे पहले वाला जो टाइम होता है ना उसको हम नेगेटिव मान लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम नेगेटिव है, इसका मतलब है कि टाइम हमने मीन से पहले मान लिया -2, और +2 का मतलब है कि मीन टाइम से बाद। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज मुझे ये कहा गया, सपोज देयर इज ए रोड इज देयर एंड दिस पॉइंट, इस पॉइंट को माना गया रेफरेंस पॉइंट, और आपको ये कहा गया कि जब 12 बजेंगे ना, एट 12 o'clock विल बी द मीन टाइम। अब एक गाड़ी आ रही है, सपोज एट 11:30 द कार इज हेयर। जब हम 12 बजे को मीन टाइम मानते हैं ना, तो 11:30 बजे को हम क्या कहेंगे? -half an hour, और 12:30 को आप क्या कहेंगे? +half an hour। तो ये बस, ये सिर्फ इसका ये मतलब है कि मीन टाइम से पहले की बात करें तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, ओके, और मीन टाइम की बात की ये है। ओके, नाउ लिसन, हाउ इज द वेलोसिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव? एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इट मीन्स टेंजेंट थीटा, वेलोसिटी विल बी टेंजेंट थीटा बिकॉज दिस इज पोजिशन टाइम ग्राफ, and tangent theta is negative because theta is greater than 90 degree, velocity is negative, then graph will be in this way। जो ग्राफ होगा इस तरह से होगा। ओके, लिसन अगेन, if anyone asks you how will be the velocity time graph corresponding to this position time graph, see here velocity is negative, here if velocity is negative then we say that, क्वेश्चन ये है कि इस पोजीशन टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करके दिखाएं। सी वेलोसिटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, देन हाउ नेगेटिव वेलोसिटी इज शोन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ? दिस और दिस, नेगेटिव वेलोसिटी मीन्स दिस वेलोसिटी। ओके फाइनल। Suppose this angle is given 135. You know what is the value of tangent 35? 135 minus 1. The value of tangent 135 is -1. Then velocity will be -1 meter per second. Okay, then it will be -1. Negative velocity in velocity time graph, uniform velocity is there. This is बेटा यहाँ से दो बातें पता चल रही हैं, एक तो वेलोसिटी नेगेटिव है और दूसरी बात है ये यूनिफॉर्म है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। और नेगेटिव और यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप कहाँ बनाओगे? इन दिस वे। क्लियर? सो इट वाज द ग्राफ फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ थर्ड इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। For non-uniform motion, listen,
बेटा फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ग्राफ वाज स्ट्रेट लाइन दिस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाज स्ट्रेट लाइन. फॉर यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ वाज दिस टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन. Now for non-uniform motion graph will be this type of graph also and it will also be in this type. ग्राफ किसी भी तरह का हो सकता है, बस आपको इस पैरेलल वाली स्ट्रेट लाइन को छोड़ दो, क्योंकि बेटा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो आपका ग्राफ कैसे बना था, इस तरह से बना था. जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में था तो ग्राफ कैसा बना था, इस तरह से बना था या इस तरह से बना था. अब तीसरा जो ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला, वो एक बात तो कंफर्म है कि इनमें से कोई नहीं होगा, तो वो और किसी तरह से हो सकता है. वो ग्राफ ये भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ ये भी हो सकता है, और टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है. ओके क्लियर. अब आप कहेंगे, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि सर इन दोनों में फ़र्क क्या है फिर, एक स्ट्रेट लाइन है, एक रेगुलर है और दूसरा इरेगुलर है. जो स्ट्रेट लाइन वाला होगा ना, इसका क्या मतलब हो जाएगा. बेटा एक बात गौर से सुने, ये बात बेटा गौर से सुने. व्हेन यू वर डिस्कसिंग अबाउट पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसका होता था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होता था. पोजीशन टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसका होता था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होता था. और मैं आपको उस दिन में एक बात कह चुका हूँ बेटा, जो रिलेशन पोजीशन और वेलोसिटी में होती है वही रिलेशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में होती है. क्योंकि बेटा dx/dt वाज v and dv/dt इज ए. जो रिलेशन पोजीशन और वेलोसिटी में है वही रिलेशन बेटा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में है. इसका मतलब क्या है कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में ये वाला ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, पोजीशन टाइम ग्राफ में ये वाला ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो बेटा जाहिर सी बात है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यही ग्राफ क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना. एक्सेलरेशन कब आता है, जब वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. ये ग्राफ बेटा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी है और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी है. और अगर मैं इसकी बात करूं, कोई टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बनाऊं, तो ये ग्राफ किसका है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का तो है ही है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है. क्लियर, फाइनल. तो टेल मी नाउ टेल मी दिस ग्राफ इज ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड दिस ग्राफ इज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. This graph is for uniform acceleration, non-uniform velocity, and this graph is for non-uniform acceleration and non-uniform velocity. Now tell me this graph. Straight line, uniform acceleration and non-uniform velocity. बेटा एक बात और देखें, पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी क्या होती थी, यू नो, टेंजेंट अल्फा होती थी ना, टेंजेंट थीटा. पोजीशन टाइम ग्राफ में जब टेंजेंट थीटा निकालते थे तो वेलोसिटी आती थी ना. ठीक ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप एक्सेलरेशन निकालेंगे वो भी क्या आएगा, टेंजेंट थीटा. तो नाउ टेल मी दिस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, एंगल लेस देन 90 डिग्री, एंड दिस एंगल इज greater than 90 degree. So this acceleration is uniform but negative. This acceleration is uniform but positive, and this acceleration is non-uniform. Listen.
This is one graph. Second graph. Third. Which of them is showing non-uniform velocity? Tell me, which of them is showing non-uniform velocity? Non-uniform velocity. Every graph is showing non-uniform velocity. Every graph. क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो पैरेलल होती है ना, ये कोई भी पैरेलल नहीं है, कन्फर्म है. एवरी इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इफ आई आस्क विच वन इज शोइंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्ट्रेट लाइन. ये दो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, ये दो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. क्योंकि मैं आपको एक बात पहले कह चुका हूं कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जो रिलेशन v का होता है, जो नाम v का होता है, वेलोसिटी टाइम में वही नाम किसका हो जाता है, a का. यू एवरीवन नो पोजीशन टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन क्या होती थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सिमिलरली इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन विल बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नाउ टेल मी, this is uniform acceleration, this is uniform acceleration, which acceleration is positive and which is negative? पोजीशन टाइम में वेलोसिटी क्या होती थी, टेंजेंट थीटा. सिमिलरली इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ acceleration is also same in the similar way. This acceleration is positive and this acceleration is negative. Clear? Now I want to tell you very important thing. Beta, in position time graph, can you calculate the velocity? You can say yes, we can calculate. V is equal to tangent theta. You will say that sir in position time graph velocity is tangent theta. हम position time graph में velocity को निकाल सकते हैं. बात मैं आपकी मान गया. Can you find acceleration in velocity time graph? Yes, सेम, बिकॉज पोजीशन टाइम ग्राफ में जो रिश्ता v का होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वही रिश्ता किसका होता है, a का. बिल्कुल सही हो गया, टेंजेंट थीटा. क्या आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट, यस. कैसे? लास्ट टॉपिक है, लिसन. How we will calculate the displacement in velocity time graph? It is very simple, beta. Listen how. I have given you this in notes in PDF. I will give you. Listen. This is the graph of uniform velocity between time t1 to time t2. This is a rectangle ABCD. लेट अस कंसीडर, हम मोशन की बात कर रहे हैं T1 से लेकर T2 तक. कहीं से भी ले सकते हो, मैंने एक छोटी सी बात ले ली T1 से लेकर T2 तक, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, तो आंसर हमेशा क्या आता है, सेम आता है. नाउ टेल मी व्हाट विल बी एरिया. एरिया अंडर ग्राफ, हम T1 से लेकर T2 तक की बात कर रहा हूँ ना, तो इस ग्राफ के अंदर का एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, AB इंटू BC. नाउ एरिया AB, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, T2 माइनस T1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, इसका नाम V है, मीन्स दिस वैल्यू इज V. Okay, beta, I am familiar for this, you know, as so displacement upon time is V, so
Now listen, comparing these, this is same as this. It means, and this is displacement will be equal to this. If this is equal to this, so this will be equal to this. Okay, and this is displacement, so area will be equal to मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको कोई ये कहे ना कि t1 से लेके t2 टाइम के बीच में उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी, तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। ये एरिया निकाल लीजिए, ये एरिया आपको क्या शो करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा जो कि t1 टाइम्स और t2 टाइम के बीच में चली गई है। तो बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ में आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो टेंजेंट थीटा, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, क्योंकि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट को हम एक जैसा मानते हैं, लगभग थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताऊंगा सारा। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो टेंजेंट थीटा, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो एरिया। क्लियर? और एक बात और बता दो बच्चे, यही नहीं कि केवल यूनिफॉर्म मोशन पे ही काम करेगा, नो नो, ग्राफ कैसा भी हो उसका एरिया निकाल लेंगे ना नीचे, तो वो ग्राफ हमें उस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। क्लियर बेटा? दिस इज सो मच फॉर टुडे, एंड बेटा इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्क्राइब द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर, एटलीस्ट 1 or 1.5 hour I will take and I will do this. Okay, and beta study best and stay at your home, be happy beta. Okay, thank you beta.